सर 11 वाजलेत सर. Good morning to all. On behalf of जयवंत प्रतिष्ठान हुमगाव संचलित आमदार शशिकांत शिंदे महाविद्यालय मेढा in association with दूधसागर महाविद्यालय बिदरी and Krishna Mahavidyalay Retre Budruk, I warmly welcome you all to this national online workshop. This is Dr. Sudhir Nagarkar, librarian Amdar Shashikant Shinde Mahavidyalay Medha, convener of this workshop. The theme of today's workshop is a NetSet guidance in library and information science. I extend a heartily welcome to our respected principal, Major Dr. Ashok V. Giri sir, and also welcome to Dr. S.D. Patil sir, Principal Dudhsagar Mahavidyalay Bidri, and Dr. Chandrakant Salunke sir, Principal Krishna Mahavidyalay Retre Budru, who are present with us today. I also warmly welcome all NetSet aspirants and library professionals who have joined us from different states of India. Now, it gives me immensely pleasure to introduce the distinguished resource person of today's National Online Workshop, Mr. Atul Ramdas Nagarkar. His qualification MA, Master of Library and Information Science, MPhil in Library in Education, NET in Library Science, SET in Library Science, and also SET in Education. I now respectfully invite Mr. Atul sir to deliver his guidance lecture on NetSet guidance in Library and Information Science, paper 2. Welcome, sir. The virtual platform is now yours. Over to you, Atul sir. For the introductions, I'm so thankful to Dr. Sudhir R. सर Nagar. अतुल सर हां गिरी सर बोलणार आहेत ना प्राचार्य सर. बोलणार आहेत का? मग सुधीर सर अनाऊन्स करा. नाही आल्यानंतर मी नाही सरांचे नाही मध्ये लिंक तुटेल ना मग आपली. असू देतात. असू मग दे. लास्टला घेऊन द्या कसं. हां घेऊया मध्ये आले की घेऊया की सर. काय अडचण नाही. Okay. तर या नाव गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. Respected our principal, Professor Dr. Sanjay D. Patil sir, Principal of Dudhsagar Mahavidyalaya Bidri, and Professor Dr. Chandrakant Salunke sir, Retre Budruk College Principal. I welcome you for this beautiful session. And again, today's inaugurator, Major Dr. Ashok V. Giri sir. Afterwards, he is going to join and inaugurate this program. Now I welcome him also. And all the guests, faculty members, and dear participants, a very warm welcome to all of you. It is privilege to be here today, and I would like to express my sincere gratitude to the regard organizing team like Shri Amol Thorat sir, librarian of Retre Budruk College, who always trust on the innovations. They are playing good job in their college. And organizer Dr. Sudhir Nagarkar sir, he is always motivating us and giving thoughtful insights to us always. And I hope today's session, it will be engaging, interactive, and very informative. With the permission of our principal, Dr. Salunke sir and Dr. Sanjay D. Patil sir, I would now like to begin today's session. Now, Dr. Sudhir sir, can I share my screen now?
येस सर. फुल स्क्रीन करा. Let it 1 minute, sir. Is it visible, sir? Hello? Not visible. Not visible. फुल एंटायर स्क्रीन करा सर. ऑनलाईन वर्कशॉप चालू आहे नॅशनल. मी नंतर करतो. हा येस सर. झाले. Again, I welcome you all. Our chief patron, Major Dr. Ashok V. Giri sir, Sanjay D. Patil sir, and Dr. Chandrakant Salunke sir. I welcome you all. And now I am going to start the session. Participants, I request you to please mute your phone or your mic. So first slide is very important, and what the point is, why should I appear for the UGC NET exam? हमें यूजीसी नेट एग्जाम को अपियर क्यों होना चाहिए, ताकि हमें अच्छे बेनिफिट मिल सके. तो कौन कौन से ऐसे बेनिफिट है जो आप यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद आपको मिलने वाले हैं, वही हमारी पहली स्लाइड है. और जैसे पहले पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे लिखा है, कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, हाई कोर्ट एंड आरबीआई एटसेट्रा. एटसेट्रा में बहुत सारी बातें आ जाती है, लेकिन सबसे पहले अहम बात यह है, हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको यूजीसी नेट क्लियर होना जरूरी है. और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको खुले हो जाते हैं जब आप यूजीसी नेट क्लियर हो जाते हो. जैसे हाई कोर्ट में चीफ लाइब्रेरियन की एक पोस्ट रहती है, उसके लिए आपको नेट होना जरूरी होता है. और भी बहुत सारी पोस्ट है, जैसे लाइब्रेरियन की पोस्ट है, उसके बाद आरबीआई में भी डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर की पोस्ट है, वहां भी आपको रिक्रूटमेंट मिल सकती है. तो सबसे अहम बात यह है कि यूजीसी नेट अगर आप क्लियर हो जाते हो तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल बन जाते हैं. उसके बाद you can become researcher in national institute or university. If you are going to clear your NET examination or you are going to qualify the NET examination, you are going to appear for as a researcher. Means what, you can do your junior research fellowship in the university or in the
national institute also. And the third benefit is you can easily get admission in PhD without entrance. मीन्स व्हाट यहाँ मुझे बताना ये है कि अगर आप यूजीसी नेट या सेट नहीं है तो आपको एक पीईटी नाम की एक एग्जाम होती है जिसे हम पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, वह आपको अपियर करना होता है। लेकिन आप अगर यूजीसी नेट एग्जाम पास है तो आपको वह एंट्रेंस देने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप सीधे आप इंटरव्यू के लिए अपियर हो सकते हैं। विदाउट रिटन एग्जामिनेशन यू कैन अपियर फॉर द इंटरव्यू ऑफ पीएचडी एडमिशन। और उसके बाद जो आपका जो बेनिफिट है वो है गेट स्कॉलरशिप और फेलोशिप फॉर रिसर्च वर्क। अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं या कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप रिसर्च फेलो है तो आपको फेलोशिप या स्कॉलरशिप मिल सकती है। हालांकि कई ऐसे छात्र हैं जो 36,000 से लेकर 54,000 तक अभी फेलोशिप ले रहे हैं, आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यूजीसी नेट की एग्जाम क्वालिफाई करनी होगी। गेट एडमिशन ये बेनिफिट्स है, लेकिन इससे भी बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जब नेट सेट की तैयारी करते हो तब आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है। और मैं समझता हूं कि ये एडिशनल नॉलेज जो आपको मिलने वाला है वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आप डे बाय डे ग्रो होते जाएंगे। और सबसे लास्ट मैंने लिखा है गेट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में ही आपको जॉब मिलेगी या महाराष्ट्र में ही आपको जॉब मिलेगी, बल्कि आप यूजीसी नेट सेट जैसी एग्जाम क्वालिफाई करके आप ऑल ओवर वर्ल्ड में भी फ्लाई कर सकते हैं। इसी वजह से अमोल सर, सुधीर सर और हमने यह सोचा कि क्यों ना हम एक नेशनल वर्कशॉप ले लेंगे और उसमें यूजीसी नेट यह जो टॉपिक है उसको हमने डिसाइड किया है। और यह टॉपिक हमने इस वजह से डेलिबरेटली आपके सामने यह टॉपिक लाकर आज हमारा प्रेजेंटेशन हो रहा है। तो आगे देखेंगे हम। कई छात्रों को ऐसे लगता है कि सेट और नेट में कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस स्लाइड से मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेट और सेट एग्जाम में बहुत सारा डिफरेंस है। लेकिन आप कहेंगे कि कौन सा, व्हाट आर द डिफरेंस इन सेट एंड नेट एंड व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कवर्ड। आई हैव कवर्ड मेनी पॉइंट्स। हालांकि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे नेट को नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, और सेट जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी स्लेट भी कहते हैं। उसके बाद सुधीर जरा कोणाचा तरी माइक ऑन आहे, जरा त्यांना बंद करायला सांगा। तेजश्री लावण मॅडम तुमचा माइक बंद करा। हालांकि नेट की एग्जाम जो है इंग्लिश और हिंदी में होती है, बल्कि सेट की जो लाइब्रेरी साइंस की जो एग्जाम होती है उसके लिए जो क्वेश्चन पेपर निकल कर आता है वह इंग्लिश और मराठी में होता है। यह दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस हम यहाँ पे जानेंगे। यह जो नेट की एग्जाम कंडक्ट करने वाली जो एजेंसी है वह है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब आप कहेंगे कि नीट का एग्जाम भी उन्होंने ही लिया था, वो अलग पार्ट है और उन्होंने ही लिया था, ये सही भी बात है। लेकिन हमारी जो नेट की एग्जाम कंडक्ट करने वाली जो एजेंसी है वह भी एनटीए ही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही है। उसके बाद सेट की परीक्षा जो कंडक्ट करने वाले हैं महाराष्ट्र में, हालांकि गुजरात और राजस्थान मध्य प्रदेश की बात अलग है, वहाँ की अलग अलग यूनिवर्सिटीज ये सेट की एग्जाम कंडक्ट करती है। लेकिन महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट करने वाली एजेंसी है सेट की एग्जाम। उसके बाद नेट जो है, नेट ऑनलाइन, यह गलती से सेट ऑनलाइन हो गई है, लेकिन आप यहाँ ध्यान देना कि यहाँ जो नेट की एग्जाम है वो ऑनलाइन होती है, जो कि सीबीटी होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है सीबीटी। और सेट की जो एग्जाम है वह ऑफलाइन होती है। गलती से यहाँ ऑफलाइन वहाँ ऑनलाइन हो गया है मेरी तरफ से। तो यहाँ लास्ट में हम डिफरेंस देखेंगे कि यह जो नेट का एग्जाम होता है उसकी जो डिफिकल्टी लेवल होती है वो हायर होती है, और सेट की जो एग्जाम होती है उसकी जो डिफिकल्टी लेवल जो है वो लोअर होती है। अब आप कहेंगे कि ये डिफिकल्टी लेवल किस पॉइंट से आप बता रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर निकल कर आता है उसका जो क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका जो क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो नेट में हायर होता है और सेट में लोअर लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब नेचर ऑफ एग्जाम,
कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो कि वह पहली बार नेट को अपेयर हो रहे होंगे, तो इसके लिए मैंने नेचर ऑफ एग्जाम के लिए रखा है। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स होंगे जिन्होंने बहुत बार अटेम्प्ट किया होगा नेट और सेट का, फिर भी मैं एक बार उनका भी रिवाइज हो जाएगा। जनरली 2 टाइम्स इन अ ईयर, तो नेट एग्जाम जनरली पूरे साल में 2 बार होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 2 ही बार होगा, कभी कभी ड्रॉप भी हो जाते हैं, कभी कभी अटेम्प्ट को ड्रॉप भी करते हैं कुछ टेक्निकल वजह से। तो यहाँ जनरली 2 टाइम्स इन अ ईयर ये दोनों एग्जाम का एक शेड्यूल रहता है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। हालांकि 2011 से पहले यह एग्जाम जो थी वह डिस्क्रिप्टिव मोड में लेते थे, वह बहुत टफ एग्जाम होती थी, लेकिन आपके लिए यह सहूलियत 2011 के बाद हो गई है और आसानी से आपका हैंडराइटिंग वहां मैटर नहीं करेगा, आपका जो भी है बाकी के बातें जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह वो भी मैटर नहीं करता है। हालांकि आपको खाली टिक मार्क करके निकल जाना है और सीबीटी होगी तो आपको जस्ट क्लिक करके निकल जाना है। उसके बाद इस एग्जाम में नेट और सेट के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, जिसका पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है उसे हम जनरल पेपर भी कह सकते हैं। उसमें 10 यूनिट होते हैं और उसके लिए आपको मार्क्स दिए जाते हैं 100, यानी 50 क्वेश्चंस होते हैं। इट कैरीज 100 मार्क्स। ओके, हम आराम से एक एक बातों को अच्छी तरह से देखेंगे। आपको बस आई रिक्वेस्ट यू जस्ट फोकस ऑन दिस स्लाइड, फोकस ऑन व्हाट आई एम टेलिंग यू। अगर आप अच्छी तरह से ये 2 घंटे देंगे तो 23 जून को जो नेट का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही फायदेमंद आप आज का ये सेशन आपके लिए हो सकता है। और प्लीज आई रिक्वेस्ट अगेन यू, प्लीज म्यूट योर माइक्स। कोई भी आपका माइक जो है अनम्यूट नहीं करेगा, क्योंकि वहां से आवाज आती है तो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। तो पेपर 2 जो होता है वह सब्जेक्ट बेस्ड होता है, 10 यूनिट्स उसके अंदर भी होते हैं और वह 200 मार्क्स के लिए होता है। तो उसमें जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो 100 क्वेश्चंस उसमें होते हैं। और कैसे होते हैं, वो किस प्रकार से आपको उनको डिकोड करना होता है, ये सारी बातें मैं आपको बता देने वाला हूँ। तो टोटल यह जो नेट का एग्जाम होता है वह टोटल 300 मार्क्स का जो है एग्जाम होता है। उसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो है 150, यानी 150 प्रश्नों की संख्या उसमें होती है। और यह जब प्रश्न मतलब यह जो एग्जाम हो जाने के बाद आपका जो कट ऑफ लगता है, ऐसा नहीं है कि मानो जनरल कैटेगरी के लिए जितना एलिजिबिलिटी के लिए उन्होंने जितने मार्क्स दिए, जैसे 40% है यानी 35% कैटेगरी के लिए है तो उतने मार्क्स मिलेंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे, ऐसा नहीं है। हर कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ लगता है, उस कट ऑफ पे भी आपको ध्यान देना जरूरी है। आपकी कैटेगरी में कौन सा कट ऑफ पिछले साल हुआ था और उससे ज्यादा अगर आपको मार्क मिलते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी क्वालिफाई होने की बनती है। आगे हम निकलेंगे नेचर ऑफ एग्जाम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू फेस नेट एग्जाम सक्सेसफुली। जैसे आज 20 तारीख है, 21, 22, 23 2 दिन बीच में है और 23 को आपकी एग्जाम है। जब आप एग्जाम के दिन के बारे में मैंने यहाँ पे स्लाइड बनाई है, आप जब एग्जाम का दिन आएगा तो आपको क्या क्या करना है। उस दिन आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेना नहीं है, जस्ट आपको माइंड को आपको कूल करना है। जितना भी आपने आज तक पढ़ा है, अगर आपका माइंड कूल होगा तो आपको मेमोराइज होने में मदद हो सकती है। दूसरी बात यहाँ पे है, टाइम मैनेजमेंट शुड बी प्रॉपर। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, पेपर 1 और पेपर 2 ये जो दोनों पैटर्न है वो डिफरेंट पैटर्न है। पेपर 1 के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ता है। वहां अगर टाइम मैनेजमेंट आपका गलत हुआ तो आप मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ओमिट भी कर सकते हैं, उनको टाइम भी नहीं मिलेगा आपको। इस वजह से टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज कंपेयर टू फर्स्ट पेपर, टाइम मैनेजमेंट सेकेंड पेपर के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये वहां आपको एम्पल टाइम मिल जाता है और उसमें आप आराम से वो जो 100 क्वेश्चन है आराम से उसको रीड करके अंडरस्टैंड करके आंसर भी अच्छी तरह से दे सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक ट्रिक आपको रखी है आपके लिए। जैसे इस ट्रिक का नाम है CRC फॉर्मूला।
अब आप कहेंगे CRC का क्या अर्थ है सर? तो while start your exam, take a first round which is called confirm round. Don't read all the questions at first. कभी कभी ऐसे लगता है ना, हर प्रश्नों को हम देखते जाएंगे, देखेंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे है वो। तो इस प्रकार से आपको करना नहीं है। हालांकि ये CBT टेस्ट होता है, जैसे कंप्यूटर के सामने एक ही प्रश्न आपको दिखाई देता है, तो जस्ट आपको उसको उस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है और उस प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको कंफर्म करना है कि यह मेरा कंफर्म में राउंड में आ जाता है, रिव्यू राउंड में आ जाता है या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। तो कंफर्म राउंड उसे कहेंगे जो जिस प्रश्न का उत्तर आपको 100% आता है। रिव्यू राउंड उसको कहेंगे जिस प्रश्न का उत्तर आपको 100% नहीं आता है, लेकिन 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपके कट हो जाते हैं, दो ऑप्शन आपके रहते, तो वो रिव्यू राउंड हुआ। और कॉम्प्लेक्स राउंड में इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि इसका आंसर क्या है, उसका लॉजिक क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, आपको कोई कंसेप्ट भी ध्यान में नहीं आती, तब आपको इसको छोड़ देना है। कंफर्म राउंड में आपको जस्ट क्लिक करना है और आगे निकलना है। हालांकि एक पहला प्रश्न अगर आपका कंफर्म है तो आपको 1 यानी 2 अंक आपको मिल जाते हैं तुरंत। इस वजह ये सब क्यों करना है? क्योंकि आपका जो टाइम मैनेजमेंट का एक पार्ट है। जब आप कंफर्म राउंड में 150 प्रश्न जो है उसमें से आप 75 प्रश्न भी कर लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि 50% मार्क्स जो है आपको अभी मिल गए हैं। तो बचे हुए 50% के लिए आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है और वो अच्छा काम करने लगता है। यह बहुत टेक्निक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेसिक ट्रिक्स टू क्लियर नेट सेट इन फर्स्ट एटम्प्ट। अगर आप मानो कि 23 तारीख को आपकी नेट एग्जाम है, लेकिन 26 जुलाई को आपकी सेट एग्जामिनेशन है, तो आपके लिए बहुत सारा टाइम सेट एग्जामिनेशन के लिए है। तो यह सेट और नेट क्लियर करने के लिए बेसिक ट्रिक्स मैंने यहाँ पे 6 बेसिक ट्रिक्स यहाँ पे आपके लिए रखे हैं। तो वो बेसिक ट्रिक्स क्या है? सबसे पहले आप हर एक को काम ये करना है, टेक आउट द प्रिंट आउट द सिलेबस एंड रीड एवरी डे। मतलब ये है कि जब ये सारा जो एग्जाम का खेल जो है ये सब बेस्ड ऑन सिलेबस होता है। बस आपको सिलेबस को इतनी अच्छी तरीके से करना है कि आप सिलेबस जो है आपका बाय हार्ट होना चाहिए बस। मतलब ये सिलेबस में जो भी क्वेश्चन आप रीड करेंगे तो उस कौन से सिलेबस से, कौन से यूनिट से, कौन से सब यूनिट से डील करता है या रिलेट करता है, यह आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए पहली ट्रिक है टेक आउट द प्रिंट आउट द सिलेबस एंड रीड एवरी डे। दूसरी जो है टेक करंट प्रीवियस ईयर्स 4 क्वेश्चन पेपर्स एंड सॉल्व इट। अब देखो ये जो है ये क्वेश्चन पेपर क्यों सॉल्व करने हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके मन में उठ सकता है। क्वेश्चन पेपर इसलिए सॉल्व करने होते हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो आपके दिमाग में बैठ जाता है कि इस प्रकार का ही पैटर्न है और इस प्रकार से ही मुझे उस पैटर्न के हिसाब से स्टडी करना है। उसके बाद टेक ऑल ऑप्शंस इनटू कंसिडरेशन एंड प्रिपेयर योर ओन नोट्स। हमेशा कुछ बच्चे, कुछ छात्र जो है मुझे हमेशा पूछते हैं कि सर ये बुक चाहिए, वो बुक चाहिए, ये नोट्स। देखिए आप हर बुक को पढ़ सकते हैं, हर वेबसाइट को ट्रैक कर सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी देख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट काम करना होता ये है कि आप अपने हैंडराइटिंग से अपने खुद के नोट्स बनाएंगे। अगर आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे और उसे पढ़ेंगे, साथ साथ रेफरेंस जो बुक्स है, जो वेबसाइट है, जो यूट्यूब चैनल्स है, उनको भी आप रेफर करेंगे, तो आप आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हो सकते हैं। चौथा है विजिट ऑफिशियल वेबसाइट रिलेटेड टू ऑप्शंस। हालांकि मैंने ये भी देखा है कि नेट का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो तुरंत गूगल पे हम सर्च करने लगते हैं, लेकिन ये करना एक लिमिट के लिए ठीक है। लेकिन इसके परे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जो भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना चाहिए और उस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आपको बहुत सारी उस कंसेप्ट के और सारी बातें जो है मिलेंगी, वह आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करनी चाहिए। इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना यह भी एक ट्रिक है।
उसके बाद टाइम डिमांड्स ऑनलाइन रिसोर्सेज, सो यूज एज मच एज इंटरनेट एंड गैजेट्स। ये जो मोबाइल आपका है, आपका जो लैपटॉप है, वह आपको बहुत सारी हेल्प कर सकता है। मोबाइल और लैपटॉप का आप यूज एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, नेट सेट क्लियर करने के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा है, मेक योर ओन ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड लिसन एज मच एज पॉसिबल। मीन्स वॉट यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड योर वॉइस इन योर रिकॉर्डिंग क्लिप्स। ओके, और वो रिकॉर्डिंग कौन से करने हैं? क्वेश्चन आंसर्स यूनिट वाइज करने हैं, और वही क्वेश्चन आंसर जो आपकी आवाज में रिकॉर्ड होंगे वही आपको बार बार सुनने हैं, ताकि वह आपका कंसेप्ट जो है वह क्लियर हो जाएगा। सामने क्वेश्चन आया, आपने उसको अगर बहुत बार सुना होगा तो आपको आसानी से उस प्रश्न का 100% करेक्ट आंसर आपको देने में उपयोग हो सकता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम इस लेक्चर में बताने वाले आपको कि क्या करना चाहिए यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा है आपको टाइटल की क्वेश्चन पेपर पैटर्न एनालिसिस। तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न एनालिसिस में मैंने 2 पार्ट यहाँ पे रखे हैं, और वो 2 पार्ट कौन से? टाइप्स ऑफ कंटेंट एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब टाइप्स ऑफ कंटेंट यानी आशय के प्रकार कौन से हैं, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यानी प्रश्नों के प्रकार कौन से हैं। मैं बाइलिंगुअल करूंगा, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग करके कोशिश करूंगा मैं कि आपको ये मैं जो पेपर पैटर्न बता रहा हूं वो अच्छी तरह से आपको समझ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह अगर आपके समझ में आएगा तो हर कंसेप्ट का लॉजिक आप बना सकते हैं, हर कंसेप्ट आपकी क्लियर हो सकती है। तो टाइप्स ऑफ कंटेंट में 4 टाइप्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि फैक्चुअल कंटेंट, कंसेप्चुअल कंटेंट, एप्लीकेशन बेस्ड कंटेंट और स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस। तो यह जो 4 प्रकार है वह किस प्रकार आ जाते हैं मैं बताऊंगा आपको। जैसे पहले मान लो कि टाइप्स ऑफ कंटेंट में फैक्चुअल कंटेंट हम लेंगे। तो यह जो प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न है, देखो ये जून 2025 में पूछा गया था ये प्रश्न। हाउ मेनी कोर क्वेश्चन? आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ हाँ, actually I am interrupting you for a moment. Our principal sir is now available, and I would like Okay. to address the gathering. Therefore, we shall proceed with the inauguration function at this stage. After the inauguration session is completed, we kindly request you continue your valuable lecture. Okay, sir. Shall I stop my sharing screen? No, it's okay. Principal Okay, sir will be okay, talking. No problem. okay. Okay, sir. Okay, proceed, sir. Yes, sir. Now it is my sir, Dr. Giri sir, तुम्हाला आवाज येतोय का सर? अमोल सर, प्राचार्य डॉक्टर गिरी सरांना ऍड केलेलं आहे. येस सर, येस सर. हां. सरांना आवाज जातोय का आपला? सरांचा आवाज येत नाही. माईक म्यूट आहे का बघायला पाहिजे. अनम्यूट करावं लागेल. येतोय का आवाज? येस सर. येतोय. ओके, मे आई स्टार्ट? Yes, Yes, sir. Now it is my proud privilege to invite our respected principal, Major Dr. Ashok V. Giri sir, to inaugurate this national online workshop and share his valuable messages with us. Please, sir, over to you. Hey, good morning, one and all who are present over here. And first of all, I'm express my apologies due to some unavoidable circumstances. So, respected Dr. Sanjay Patil sir, the principal of Dudhsagar Mahavidyalaya Bidri, respected Dr. Chandrakant Salunke sir, Krishna Mahavidyalaya Vetri, Honorable Resource Person Dr. Atul Nagarkar sir, Librarian Mr. Amol Thorat, convener of this seminar, Dr. Sudhir Nagarkar, the Honorable Librarian of our college,
as well as the participants who are present over here on online platform. Once again, good morning to one and all. On behalf of Jaivan Pratishthan, Umgaon, Amdar Shishikant Shinde Mahavidyalaya, I am warmly welcome to everyone who are present over here for one-day national level online workshop on library information science paper 2. This workshop has been organized under the valuable guidance of Honorable MLA Sri Shishikant Shinde Sahib, Honorable Secretary of our Jaivan Pratishthan, Srimati Vaishali Shinde Madam, and their vision and support always inspire us to conduct quality academic program for the students. Dear students of NET and SET examinations, uh, the examinations are really important and a milestone in your academic career. The success in these examinations require dedication, hard work, proper planning, and expert guidance. The today's workshop is a really great opportunity for one and all for your strengthen of your different type of presentation, and definitely you will gain a valuable insights with the help of this the experts who are available over here. We are very fortunate enough, Professor Atul Nagarkar sir, and as a resource person, he is highly qualified academician who are guided many students in library science and information, as well as his help to achieve the success in NET and SET examinations. His rich teaching experience, including service reputed institutions such as Siagat Institute Pune, will certainly benefited to all the students and as well as participants. I really encourage all the students who are participating in this national level seminar. They will definitely it will possible, it will helpful to them to clear their doubts and make the best use of learning opportunity. Remember, success comes to those who work consistently and with confidence, and definitely determination is a very important part or vital part of this one. I would like also congratulate Mr. Amol Thorat, the librarian of Krishna Mahavidyalaya, Dr. Sudhir Nagarkar, librarian of our college, as well as he's playing a role of convener also for his excellent planning management of this national level online workshop. I wish once again to all participants for their great success in upcoming NET and SET examinations. May your hard work bring to your excellent returns and bright future. Wish you all the best once again, and thank you so much for providing me this opportunity. And really, Dr. Atul Nagarkar, he is a very brilliant person. He is a really dedicated person, and definitely his guidance will be definitely helpful to you people to achieve your nearby success and different type of this the examinations. Once again, wish you all the best, and thank you so much for providing me this opportunity. Thank you, sir. Over to you. Sessions over. Thank you, sir. Thank you very much. Your valuable words have encouraged all of us. Your constant support and guidance have always been a source of inspiration for us. On behalf of all organizers and participants, I express my sincere gratitude to you, sir, for your valuable presence and blessing and motivating message. Thank you once again. And Thank you, sir. Thank you. thank you, Atul, sir, for your cooperation. Yeah, Please, you continue, sir. yeah. I will say something about sir. Today, sir has inaugurated this session. Major Dr. Ashok V. Giri sir, who inaugurated today's national online workshop, and giving us lots of guidance by his valuable words, and along with the excellent thoughts whose guidance and leadership continue to inspire us, and always sir motivating us for the taking this kind of national state level conferences workshops. And sir, I'm expecting your blessings always forever in our life. So thank you to you, sir.
Thank you so much, sir. You're most welcome, sir. Yeah. Wish you all the best. Thank you, sir. Now we will continue this session. Now here we are seeing the question. That question is about LibQual survey, and what is the question is how many core questions are provided in LibQual survey. Here the question arises in your mind: what is LibQual? LibQual is a survey and it comprises 22 questions. When you will go to the official website of LibQual, then you will find the 22 questions what they are assigned here for the taking survey of library services. So here what we found, the factual question. It is factual question where it should be known to you what are the question number of questions, like 22 questions were asked in the LibQual survey. It is factual questions, and types of questions, it is one option correct question. Okay, means here you can understand type of content, it is factual content, and type of question, it is one option correct question. Now we will move to next question. What is the next question is? Question is of conceptual content. Okay, the second type I have put it here, types of content, that is conceptual content. Okay, and the question is this. I will read this question as per the annexure of colon classification. Okay, now you come to know it is based on colon classification, and which unit it deals. The unit is unit number 5. And what is the name of that unit? Organization of knowledge. And colon classification is the tool of organization of knowledge. Okay, as per the annexure of colon classification, 6th revised edition in the main class V. हिस्ट्री के लिए उन्होंने मेन क्लास कौन सा रखा है? V रखा है, कैपिटल V है. An isolate whose number ends with 19, मतलब V19, ये जो आइसोलेट है वह 19 नंबर से उन्होंने उसको समाप्त किया है. इज डेजिग्नेटेड एज अ होस्ट क्लास. और ये सारी जो बातें हैं वो कोलन क्लासिफिकेशन मेन एंट्री की जो है वो जो की है होस्ट क्लास. इन द फैसेट फॉर्मूला ऑफ होस्ट क्लास V:19 P इन ब्रैकेट P2 रिप्रेजेंट, इस ये किसको रिप्रेजेंट? इस प्रश्न का उत्तर आना कठिन होगा. इस वजह से PMEST, ये जो फॉर्मूला जो रंगनाथन इन्होंने दिया है वो P को पर्सनालिटी, मैटर, T को एनर्जी, S को स्पेस और T को टाइम. ये जो PMEST है वो फैसेट फॉर्मूला में यह आ जाता है. और यह यहाँ देखिए P जो पहला आ गया है ब्रैकेट में उसको कहते हैं पर्सनैलिटी या फर्स्ट लेवल ऑफ पर्सनैलिटी. P2 जो आ गया है उसे कहते हैं सेकेंड लेवल ऑफ. दिया है वह एनुमरेशन है, यह एनुमरेशन को दर्शाता है. इस वजह से यह P जो है, जब तक आपकी ये कंसेप्ट PMEST वाली कंसेप्ट क्लियर नहीं होती तब तक आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं, मतलब यू आर अनेबल टू गिव द आंसर. इफ यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट देन इजीली यू आर गोइंग टू एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इसका उत्तर जो है 2 नंबर का ऑप्शन जो है वह आपका आंसर होगा. तो यहां पे मैंने 2 टाइप हमने देख लिए, फैक्चुअल और कंसेप्चुअल. अब आपको एक और बात मैं बताऊंगा. जून 2025 की जो नेट एग्जाम हो गई थी, क्वेश्चन एनालिसिस मैंने किया है. अब क्यों किया ये भी मैं बताऊंगा आपको क्यों किया है एनालिसिस. तो देखिए जैसे मैंने क्वेश्चंस के जितने भी टाइप्स आपको यहाँ पे बताए हैं, यहाँ पे 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन, और वह सारे क्वेश्चंस इसमें आ गए हैं. अब हमें देखना ये है कि 1 ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, मतलब 40 क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड फॉर 80 मार्क्स. ओके, उसके बाद हमें एनालिसिस क्या करना है,
उसके बाद सबसे ज्यादा प्रश्न कौन से आ गए हैं? अरेंज द सीक्वेंस और ऑर्डर। मतलब आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से 3 आपको करेक्ट होंगे और उसके भी ऑर्डर आपको लगानी है, या 5 ऑप्शन होंगे और उसका भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको लगानी है। ऐसे क्वेश्चन जो है उसकी मात्रा उन्होंने बढ़ाई है। और एक बात मैं आपको यहां कहूंगा, इससे पहले जो नेट की एग्जाम हो गई थी उसमें उन्होंने पैसेज, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस उन्होंने बहुत सारे दिए थे, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो असर्शन रीजनिंग उन्होंने ओमिट ही कर दिया है। मतलब असर्शन रीजनिंग को एक भी प्रश्न नहीं है, असर्शन रीजनिंग निकाल दिया है उन्होंने। क्यों निकाल दिया है उनको ही पता है, लेकिन असर्शन रीजनिंग का जो टेंशन अभी है स्टूडेंट्स का कम हो गया है, ऐसे हम कह सकते हैं। उसके बाद 3 ऑप्शन करेक्ट वाले 15 क्वेश्चन है, मैचिंग जो है जोड़ियां लगाओ वो 15 क्वेश्चन है। सबसे कम क्वेश्चंस 2 ऑप्शन करेक्ट वाले हैं। यहाँ भी 91 to 100 के पैसेज दिया हुआ है, पैसेज के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी संख्या उन्होंने बढ़ा दी है। पहले तो एक पैसेज आता था, 5 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन आज इस एग्जाम में जून 2025 के एग्जाम में उन्होंने 10 पैसेज और 10 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। इस प्रकार से आप भी एनालिसिस करते हैं, और आपको एनालिसिस इसलिए करना चाहिए कि जैसे 1 ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन आप उसको अगर गलती से गलत आंसर को टिक क्लिक करते हो तो आपके 2 अंक चले जाते हैं। इस वजह से 1 ऑप्शन करेक्ट के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी होती है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे जैसे कंसेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस, ये सारे जो है कंटेंट है, प्रश्नों के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा, बाद में रिपीट हो रहा है यहाँ पे। अभी देखिए ये प्रश्न हो गए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि प्रश्न के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन का टाइप है वह अरेंज द ऑर्डर वाला है, अरेंज द ऑर्डर वाला है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि अरेंज द सीक्वेंस, जो 5वां जो प्रकार है, यहाँ पे देखें ये प्रकार, यह एग्जाम्पल इस प्रश्न से, यह अरेंज वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है? अरेंज द फॉलोइंग फेजेस, मतलब इन्होंने 5 फेजेस दिए हैं ऑफ डिजास्टर प्लानिंग। डिजास्टर प्लानिंग के 5 फेजेस उन्होंने दिया है इन अप्रोप्रिएट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स ऑफ इफ्ला। इफ्ला के जो गाइडलाइंस है, इफ्ला के जो प्रिंसिपल्स है, उसके हिसाब से आपको इन फेजेस को क्या करना है? अरेंज करना है। इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए डिजास्टर मतलब बहुत बड़ा उसे संकट बोल सकते हैं। तो यह जैसे कभी कभी फ्लड आ जाता है तो ये बहुत बड़ा संकट हुआ, कभी कभी आग लग जाती है तो वह भी बहुत बड़ा संकट हुआ। तो इस समय वह किस प्रकार से आपको इसका जो फेजेस है वह आपको किस प्रकार से असाइन करने हैं, यह उन्होंने यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, प्रिपेयर्डनेस, रिकवरी, मिटिगेशन, प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स। तो यहाँ बहुत ही बारीकी से आपको समझना है कि पहले हमें क्या करना चाहिए, दूसरी फेज कौन सी होगी, तीसरी फेज कौन सी होगी, और ये सारी फेजेस जो प्रिंसिपल, इफ्ला के जो प्रिंसिपल है उस हिसाब से होंगे। हालांकि ये लॉजिक से भी आप पता कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, डिजास्टर आने से पहले ही आपको क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन करना चाहिए, प्रिवेंशन करना चाहिए। तो प्रिवेंशन किस लिए करना चाहिए? क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसे कहा जाता है। अगर प्रबंध या रोकथाम पहले ही आप कर देंगे तो अच्छा होगा, मतलब आपको ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं आएगी। तो यहाँ प्रिवेंशन सबसे पहले आ जाता है। उसके बाद मिटिगेशन। मिटिगेशन का अर्थ क्या है? अगर मान लो कि डिजास्टर आ भी जाता है तो भी आपको क्या करना है? उसको कम करने की कोशिश करनी है, शमन करना है, उसके प्रभाव को आपको कम करना है, उसके लिए आपको उपाय करने होंगे। ये दूसरी बात है, मतलब मिटिगेशन यानी शमन करना है, उस डिजास्टर को आप उसकी मात्रा घटानी है आपको, ठीक है। तीसरा जो है प्रिपेयर्डनेस, आपको डिजास्टर के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब आपके लिए लाइब्रेरी में अगर मान लो कि कभी कुछ आग लगने की संभावना है तो आपको वहां फायर डिस्टिंग्विशर जो है वह लगाने चाहिए पहले ही, उसको कहते हैं प्रिपेयर्डनेस।
उसके बाद जो है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स यानी मान लो कि कहीं गलती से फ्लड या कुछ हो भी जाए, डिजास्टर, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपदा के समय आपको तुरंत कदम उठाने चाहिए, इसको कहते हैं रिस्पॉन्स। और लास्ट में आ जाता है रिकवरी। रिकवरी का अर्थ क्या है, जैसे मान लो कि अभी हो ही गया है डिजास्टर और आपका नुकसान भी हो गया है, तो सबसे लास्ट में क्या होगा, नुकसान की भरपाई आपको करनी पड़ेगी या गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। सामान्य स्थिति में वापस जाना, इसको कहते हैं रिकवरी। तो इसका जो सीक्वेंस कैसे बनेगा, DCAEB। तो हर एक बात को समझ समझ के आपको आंसर लिखने होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको लॉजिक भी वहां पे लगाना होता है। उसके बाद एक प्रश्न मैं और लूंगा जो कि सीक्वेंस वाला ही प्रश्न है, इसको ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हिंदी में है, आपको अच्छी तरह से जल्दी से समझ में आ सकता है। अब प्रश्न क्या है देखिए, किसी विशेष पुस्तकालय में एक वर्चुअल संदर्भ सेवा कार्यान्वित करने के कृत्यों को अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब अनुक्रम में व्यवस्थित करना यानी अरेंज द सीक्वेंस। ओके, अरेंज द सीक्वेंस। विच लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी है यहाँ पे। और वहां क्या करना है, वर्चुअल संदर्भ सेवा कार्यान्वित करने के लिए आपको वहां क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। ये हुआ उसका अर्थ। ये करने के लिए आपको क्या क्या करना है, इसकी जो सीढ़ियां उन्होंने दी है उसको बस आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप सी को देखेंगे, प्रयोक्ता जरूरतों की पहचान करना। आपके यूजर की डिमांड क्या है, यह डिमांड ध्यान में रखकर ही तो आपको उस सॉफ्टवेयर का चयन करना है। इस वजह से आपको पहले डिमांड, प्रयोक्ता जरूरतों की पहचान करना है, यानी उस डिमांड को आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरी बात यहां पे ये है, वर्चुअल संदर्भ सॉफ्टवेयर चयनित करना। As per you consider now demand of your user, now you are going to select your software. Which software is suitable for my completing demands of users? ओके, उस सॉफ्टवेयर को मान लो कि आपके लाइब्रेरी में इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी करनी है तो आपको डीस्पेस के साथ जाना होगा, बिल्कुल। तो आप डीस्पेस जैसे सॉफ्टवेयर का चयन कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको मतलब उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लाइब्रेरी में। ओके, तीसरी जो सीढ़ी है कर्म। अब मान लो कि वो डिस्पेस का सॉफ्टवेयर आपके यहाँ पे आ गया, चयन हुआ, आपने उसको लाया भी है। अब आपको क्या करना चाहिए, आपके लाइब्रेरी में जितना भी स्टाफ है, लाइब्रेरी का स्टाफ, उन कर्मचारियों को क्या करना है, प्रशिक्षित करना है, उनको ट्रेनिंग देना है। अब ट्रेनिंग भी हो गया, उनको दे दिया आपने, लेकिन यह जो सॉफ्टवेयर है उसके कोई तो होना चाहिए। इस वजह से चौथी पे जो सीढ़ी होगी, सेवा पोर्टल शुरू करना। तो आपके लिए, उसके लिए आपको एक पोर्टल यानी वेबसाइट जैसा पोर्टल बनाना होगा, ब्लॉग जैसा कुछ तो बनाना होगा आपको, ताकि वह घर से भी आपका जो है वह रिसोर्सेस को वो एक्सेस कर सकेंगे। और लास्ट में सेवा निगरानी और सुधार करना। सेवा निगरानी यानी मेंटेनेंस, और सुधार करना यानी इंप्रूवमेंट करना। हर समय कोई भी सॉफ्टवेयर आप अगर लेते हो तो भी उसका मेंटेनेंस और उसमें आपको सुधार करने की जरूरत होती है। तो यह किस प्रकार से अरेंज होगा आपका सीक्वेंस, CEABD। उसके बाद ये सीक्वेंस वाला प्रश्न था। अब देखो, 1 ऑप्शन करेक्ट वाला ये प्रश्न है। प्रश्न कौन सा है, प्रश्न हम पढ़ेंगे। प्रश्न है, द प्रोजेक्ट अंडर विच डिस्पेस क्रिस वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड वॉज फंडेड बाय। अब आप कहेंगे सर ये पढ़ के कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे होता है क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, अभी देखिए ये नेट सेट एग्जाम है, अब पुराने जैसे नहीं रहा। पुराने फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते थे पुराने नेट सेट एग्जाम में, लेकिन अब एप्लीकेशन बेस्ड शुरू हो गए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये इस प्रश्न को जब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रश्न है क्या। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। द प्रोजेक्ट अंडर विच DSpace CRIS was originally developed was funded by। यहां 3 बातें हैं। इस प्रोजेक्ट को फंडिंग किसने किया, और वो आंसर मैं आपको बताता हूं, हांगकांग यूनिवर्सिटी ने किया। ये हमारा हो गया। उसके बाद दूसरी बात क्या है, ये जो ओरिजिनली जो डेवलप हुआ जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है, DSpace CRIS।
अब डीस्पेस आपको पता है लेकिन क्रिस आपको पता नहीं होगा, तो क्रिस का फुल फॉर्म क्या है? करंट रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम। करंट रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम ये जो है ये किसने डेवलप किया है? रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये लास्ट टाइम जो नेट में एग्जाम में प्रश्न आया था तो इसका ऑप्शन उन्होंने रीम्स दिया था। रीम्स ये करेक्ट आंसर। हु डेवलप्ड डीस्पेस क्रिस बाय विच इंस्टीट्यूशन, और ऑप्शन में रीम्स दिया था। रीम्स का मतलब क्या है? रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो इस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। अब उन्होंने पूछा डीस्पेस क्रिस को फंडेड किसने किया। अब अगली बार यह प्रश्न आएगा कि डीस्पेस क्रिस का फुल फॉर्म क्या है, तो आसानी से करंट रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है। द क्रैनफील्ड टेस्ट एसोसिएटेड विद evaluation of information retrieval system was carried under the direction of C.W. Cleverdon. Okay. अब प्रश्न ये है कि ये क्रैनफील्ड टेस्ट है। ओके, C.W. Cleverdon उनकी डायरेक्शन के अंडर हुआ है, लेकिन इसमें क्रैनफील्ड टेस्ट किस यूनिट से संबंधित है, यह प्रश्न भी उठ सकता है आपके मन में। तो यह प्रश्न जब उठेगा तो ये प्रश्न जो है C.W. क्लेवर्डन इन्होंने जो ये काम किया है, यह प्रश्न जो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का है, जिसे हम माहिती प्रतिप्राप्ति भी कहते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके अपने पास लेके आना, उसे हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कहते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के कई मॉडल भी है। ओके, तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जैसे क्रैनफील्ड टेस्ट जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल associated with evaluation of information retrieval system was carried under the direction। ये जो क्रैनफील्ड टेस्ट, ये जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम का इवेल्युएशन करने के लिए जो आए हैं वो किसके डायरेक्शन अंडर आए हैं? C.W. क्लेवर्डन इसका आंसर है। अब प्रश्न क्या है देखिए। प्रश्न है अकॉर्डिंग टू OCLC। प्रश्न है अकॉर्डिंग टू OCLC। अब OCLC का फुल फॉर्म क्या है आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर से बताता हूं जिनको पता नहीं है ताकि उनको समझ में आए। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, पहले उसका पुराना नाम क्या था? ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। तो अकॉर्डिंग टू OCLC रिसर्च रिपोर्ट नो योर कम्युनिटी एंड इट्स नीड्स इज द रीफ्रेजिंग ऑफ विच लॉ ऑफ रंगनाथन। जो OCLC का जो रिपोर्ट था उसका नाम क्या था? नो योर कम्युनिटी एंड इट्स नीड्स। ये उस रिपोर्ट का क्या था? नाम था। और ये रिफ्रेज करता है रंगनाथन के किस लॉ से, मतलब यह जो है वह किस लॉ से संबंधित है, ऐसे हम जान सकते हैं। तो यहां पे एक शब्द है नो योर कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी यूजर और उसके नीड्स। तो रंगनाथन जी के 5 लॉ कौन कौन से हैं वह भी हमें पता नहीं। ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो रंगनाथन का पहला रूल क्या है? लॉ क्या है? बुक्स फॉर यूज। दूसरा क्या है? एवरी रीडर हिज और हर बुक। एवरी बुक इट्स रीडर। सेव द टाइम ऑफ द रीडर। और 5वां है लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो आप कहेंगे ये 5 लॉ आपने बताए, लेकिन उत्तर क्या है? सेकेंड लॉ है। क्यों? क्योंकि सेकेंड लॉ में रीडर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, सिग्निफिकेंस रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ कम्युनिटी, नो योर कम्युनिटी मीन्स एवरी रीडर हिज और हर बुक, यह उसका लॉजिक है। उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, आपको ये भी सवाल उठता होगा मन में कि सर हमें यूनिट कब सिखाने वाले हैं आगे जाके। हम यहाँ पे हमें पैटर्न आपको बताना था, जो कि पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप पैटर्न को डिकोड करना जान लोगे, जब आप पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लोगे, तो नेट का एग्जाम तो आपके लिए बस ऐसे ही मतलब आसान हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिव्यू टाइप सर्विसेज। और इसमें उन्होंने ये देखिए, ये जो है प्रश्न 2 ऑप्शन करेक्ट वाला प्रश्न है। वहां अरेंज द सीक्वेंस वाला देखा था, 1 ऑप्शन करेक्ट वाले प्रश्न को देखा है। अब हम 2 ऑप्शन करेक्ट वाले प्रश्नों को देख रहे हैं।
उसके बाद 3 ऑप्शन करेक्ट वाला भी प्रश्न देखेंगे और उसके बाद कुछ पैसेज वाले भी प्रश्न हम देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है देखिए, ट्रेंड रिपोर्ट, करंट अवेयरनेस ट्रेंड रिपोर्ट, न्यूज क्लिपिंग, ज्योग्राफिकल सोर्सेस, स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट। प्रश्न में उन्होंने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिव्यू टाइप्स सर्विसेस। इसमें 2 सर्विसेज ऐसे हैं जो कि रिव्यू टाइप है और 3 सर्विसेज ऐसे है कि जो रिव्यू टाइप नहीं है। तो इसमें देखिए आसानी से आपको समझ में आएगा कि यह जो ट्रेंड रिपोर्ट्स है वह रिव्यू टाइप सर्विसेज है और जो स्टेट ऑफ द रिपोर्ट है वह भी रिव्यू टाइप सर्विसेज है। करंट अवेयरनेस ये क्या अलग है, करंट अवेयरनेस सर्विस है, वो अलग ही सर्विस है। न्यूज क्लिपिंग्स वो भी करंट अवेयरनेस में आता है। ज्योग्राफिकल सोर्सेस ये सर्विसेज अलग है, लेकिन ट्रेंड रिपोर्ट और स्टेट ऑफ द रिपोर्ट, आर्ट रिपोर्ट, ये जो है रिव्यू सर्विस है। मतलब रिव्यू सर्विस इसे कहेंगे जो सेकेंडरी ये मटेरियल रहता है, जो कि आपका प्राइमरी मटेरियल पे बेस्ड ये रिव्यू बनाए जाते हैं, इसे हम ट्रेंड रिपोर्ट या स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट भी कहते हैं। तो यह रिव्यू रिपोर्ट है। बी एंड ई ओनली इज द आंसर। अब ये प्रश्न देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि 2 ऑप्शन वाला प्रश्न का प्रकार हम देख रहे हैं, लेकिन आगे जाके हम 3 ऑप्शन के जो प्रश्न है, 3 ऑप्शन करेक्ट वाले प्रश्न जो है, इसको मैंने यहाँ पे स्थान दिया है। ये प्रश्न क्या है देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशंस। ये प्रश्न क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशंस और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ऐसा हम समझेंगे। ये फैक्ट्स ऑन फाइल न्यूज डाइजेस्ट है और वो सही भी है, वो सही भी है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, यह डायरेक्टरी है और वह प्रश्न सही भी है। उसके बाद कॉन्कर्डेंस और डी है विलिंग्स प्रेस गाइड और ई है बुक्स इन प्रिंट। आप कहेंगे सर ये जो ए बी डी ओनली इज द करेक्ट आंसर, ये तो समझ गए, लेकिन ये कॉन्कर्डेंस क्या है, या यहां आपको समझ में आया होगा कि कॉन्कर्डेंस एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं है, बराबर है, क्योंकि वो करेक्ट नहीं है यानी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। तो कॉन्कर्डेंस है क्या, तो कॉन्कर इट इज ए रेफरेंस टूल। कॉन्कर्डेंस इट इज ए रेफरेंस टूल which alphabetically arranged in index। एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। और आप बुक्स इन प्रिंट, बुक्स इन प्रिंट क्या है, इंडेक्स नहीं है तो क्या है, बुक्स इन प्रिंट ये डेटाबेस है जो कि प्रोक्वेस्ट द्वारा दिया जाता है। ProQuest provides this database and the name is books in print। तो ABD only is the answer। अब देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान देकर देखना इसे, क्योंकि मार्क 21 के बहुत सारे प्रश्न आज की तारीख में यानी जून 2026 हो चाहे दिसंबर हो, उसमें पूछे ही गए हैं। आपको यह प्रश्न पूछा है उन्होंने, देखिए लिस्ट 1 और ये जोड़ियां लगाओ, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में आपको यह प्रश्न दिखाई दे रहा है, ये लिस्ट 1 में पर्सनल एंट्री, पर्सनल सब्जेक्ट हेडिंग्स, पर्सनल एडेड एंट्री और बिब्लियोग्राफिक टाइटल, यह जो है यह लिस्ट 1 में एलिमेंट्स दिए हैं और उसके टैग जो दिए हैं वह लिस्ट 2 में दिए हैं। अब उन्होंने कंफ्यूजन कहाँ किया है बच्चों का, वो कंफ्यूजन यहाँ आइदर पर्सनल दे कुड हैव रिटन मेन एंट्री, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने पर्सनल मेन एंट्री लिखा है। इस वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हमें यह पता होना चाहिए कि पर्सनल मेन एंट्री ऑथर की एंट्री होती है, पर्सनल मेन एंट्री किसकी एंट्री भी कहते हैं। तो